Hi children, good morning. I am Mehul sir. As you all know, I am teaching you English and we have completed Unit 1 and Unit 2. Now, today we will start Unit 3. There is a poem. Now, before that, I want to ask you some questions. Look at these seeds. Do you know which seeds are they? Okay, I will tell you. They are acorn seeds, or you can say nut of acorn. Okay, now, okay, here you can see there is a small plant. You can see its root which is अंडर द ग्राउंड, जो मिट्टी के अंदर है वो उसका रूट है, एंड अबाउ द ग्राउंड जो है वो उसका प्लांट का ऊपर का पार्ट है जिसको हम बोलेंगे सूट. क्या बोलेंगे? सूट. SHOOT, सूट. Okay, now next. Okay, now on the screen you can see there is a oak tree. This is oak tree, and you can see these nuts, they are acorn. Okay, so today we will learn poem about this acorn. Acorn means nut of oak tree. Okay, here this acorn is telling us how it develops slowly and gradually. Now next. Okay, this is the poem. First of all I will recite the poem. After that I will explain you the whole poem. Little by little an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little each day it grew, little by little it sipped the dew. Downward it sent out a thread-like root, up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest sprite. Here, this is the poem about acorn, a nut of the oak tree. Okay, here that acorn is telling us that it was very little seed in the beginning, but slowly when it sank into the ground, वो मिट्टी में जब गिर गया उसके बाद it developed in a small plant, and gradually it become a very big tree of oak. Okay, so now I will explain this story in detail. Here you can see first two lines. Little by little an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed. Here mossy bed means you can say here comfortable bed, or bed of, जो काई बोलते हैं ना, जो लील जमती है गीली जमीन के ऊपर, वो. ओके, सो व्हेन दिस स्मॉल acorn fall on that mossy bed, it sinks slowly into the ground, and gradually it develops in a small plant. Okay, now here you can see its mossy bed, and this one is acorn. Now I am improving every day, hidden deep in the earth away. Now it is telling that it is improving, मतलब वो धीरे धीरे improve हो रहा है, या you can say, or you can say it's developing. वो धीरे धीरे बड़ा होके क्या बनेगा? छोटा सा plant, then it will develop into the big oak tree. Okay, now next. Little by little each day it grew, little by little it sipped the dew. Here, what is the meaning of dew, children? You can see in these two pictures, on the grass and on the leaves, you can see small drops of water. So these small drops of water, they are called dew. Especially you can see this kind of dew on the plants, leaves and flowers during the winter season. ठंड के मौसम में ही ज़्यादातर ये देखने को मिलता है. So here this acorn seed is telling that little by little each day it grew. वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, and little by little it sipped means slowly धीरे धीरे करके जो पानी पीते हैं या कुछ भी पीते हैं लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं? सिप. So little by little it sipped the dew.
वो धीरे धीरे करके जो हल्का सा पानी मिलता है जमीन के ऊपर रहता है वो धीरे धीरे खींच लेता है, एंड यूजिंग ऑल दैट थिंग्स इट इज नाउ डेवलपिंग. नेक्स्ट, day by day and year by year, little by little the leaves appear. Okay, sometimes for some plants it will take year to for the leaves to appear. कुछ प्लांट में लीव्स आने में भी बहुत टाइम लग जाता है. ओके, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, लिटल बाय लिटल द लीव्स appear. धीरे धीरे छोटे से प्लांट में क्या आने लगते हैं, पत्ते भी आने लगते हैं आगे. Now, and the slender branches spread far and wide till the mighty oak is the forest's pride. Now, in the first picture you can see there is a small plant. It is very tender, or you can say it has slender. Slender means पतले और नाजुक, एकदम कमजोर branches उसकी है पहले में. But gradually it grows. In picture 2 and in picture 3 you can see very big oak tree. और इसके जो ब्रांचेस है वो कैसे बन गए हैं, एकदम माइटी, एकदम स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, है ना, जो हम तोड़ भी नहीं पाएंगे, उनको हिला भी नहीं पाएंगे. सो इट इज टेलिंग दैट टिल द माइटी ऑफ इज द प्राइड्स फॉरेस्ट. जो एक छोटा सा नट था जो हमने पहले देखा था, छोटा सा ये वाला, उसमें से एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया. ओके, एंड इट बिकेम द प्राइड ऑफ द फॉरेस्ट. प्राइड मतलब गर्व, जिसके ऊपर पूरे फॉरेस्ट को अभिमान हो, गर्व हो, ऐसा इतना बड़ा बन गया. तो हमने यहाँ पर देखा कि छोटा सा सीड में से इतना बड़ा प्लांट कैसे बनता है. ओके, तो ये था पोयम. नाउ सॉरी, डाउनवर्ड इट सेंड आउट अ थ्रेड लाइक रूट, अप इन द एयर स्प्रेंग अ टाइनी सूट. तो यहाँ पर जो डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ जो आ रहा है वो कौन सा पार्ट है, ये वाला, ये रूट है. एंड द अपर पार्ट इज कॉल्ड सूट. जो ऊपर की तरफ बढ़ता है जमीन में, जमीन के ऊपर आता है, वो पार्ट बोलते हैं उसको सूट, और जो जमीन के अंदर जो डेवलप होता है उसको बोलेंगे रूट. ओके, दिस बोथ द पार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट. नाउ न्यू वर्ड्स. द फर्स्ट वन इज हिडन. हिडन मीन्स छुपा हुआ या इनविजिबल और साइटलेस, थिंग्स विच वी कैन नॉट सी. देन डाउनवर्ड मीन्स गोइंग डाउन, जैसे कि हमने देखा था रूट. रूट कहाँ जाता है, डाउनवर्ड, जमीन के अंदर की तरफ डेवलप होता है. और यू कैन से डिसेंडिंग. देन स्लेंडर मीन्स थिन और वीक. माइटी, माइटी मीन्स पावरफुल और स्ट्रॉन्ग. प्राइड मीन्स ग्लोरी और ऑनर. देन इम्प्रूव मीन्स डेवलप और बी रिपेयर्ड, मतलब कि अपने आप को ठीक करना या डेवलप होना. सिप, यू कैन सी देयर इज अ बॉय हु इज सिपिंग कोकोनट वाटर. धीरे धीरे करके वो सिप सिप मतलब कि हल्के से वो पी रहा है. दैट इज कॉल्ड ड्रिंक स्लोली और सिप्ड. ओके, देन सूट. सूट मीन्स यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज अ स्मॉल प्लांट. द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड सूट एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड रूट. So here shoot means upper part of plant above the ground, and root means part of the plant or tree under the ground. Then mossy bed means here for the poem comfortable soft bed. Okay, next question answer. The first question, name the tree that द एकॉर्न ग्रोज इनटू. तो जो एकॉर्न का नट है, जो सीड है, वो कौन से पेड़ में पैदा होता है, यस, द एकॉर्न ग्रोज इनटू एन ऑक ट्री. ऑक ट्री के ऊपर वो होता है. देन व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो. सीड को डेवलप होने के लिए क्या क्या चाहिए. ओके, आई विल शो यू. सीड नीड वाटर, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वाटर. देन सॉइल मतलब मिट्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. देन एयर, इसको हवा भी चाहिए. देन सनलाइट, एंड इफ यू वांट टू ऐड फर्टिलाइजर यू कैन ऑल्सो ऐड इट टू ग्रो, टू मेक इट्स ग्रो वेरी फास्ट. उसका ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम उसमें फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं. ठीक है, सो दीज ऑल थिंग्स, सॉइल, वाटर, फ्रेश एयर एंड सनलाइट, दे आर नेसेसरी.
Next, number 3, how many describing words can you find in this poem? Describing words, I think all of you know, we have discussed earlier in the last lesson. Describing word क्या होता है? The word that say something about noun. तो यहाँ पर ऐसे कुछ describing words आए थे poem के अंदर. Okay, now following describing words are there in the poem. ये थे सब. Tiny, slender, mighty of tree. मतलब ऑफ ट्री कैसा था? Mighty. Then deep, slowly, मोजी, थ्रेड लाइक रूट. रूट कैसा था? थ्रेड जैसा. यहाँ पर थ्रेड लिखा है लेकिन थ्रेड रहेगा, थ्रेड. देन लिटल. ओके, सो दीज ऑल आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. नेक्स्ट, नंबर 1, लुक एट द 2 पिक्चर्स एंड फाइंड फॉर थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दीज ट्रीज and talk about them. Okay, you can see 2 different pictures of trees. This is tree 1, sorry, tree 1 is at the lower side and tree 2 is at the upper side. ये वाला tree 1 है और ये tree 2. Okay, so here you have to find out difference between these 2 trees. Answer, tree 1 is happy and smiling. As you can see in the picture, tree 1 is happy and it is smiling, while tree 2 is looking sad and it is in pain. वो दुखी है ना. Okay, now we will discuss why he is unhappy. Okay, tree 1 is getting everything that it needs to grow. tree 1 को सब कुछ मिल रहा है, साफ सुथरी हवा, पानी, है ना, सब कुछ उसको मिल रहा है. बट फॉर ट्री 2, ओके, वाइल ट्री 2 इज नॉट गेटिंग दिस थिंग्स प्रॉपरली. ट्री 2 को ये सब अच्छे से नहीं मिल रहा है ना. देन इन पिक्चर 1, ट्री गिव्स अस फ्रूट्स. यहाँ देखोगे आप तो इस ट्री हमें क्या क्या दे रहा है? ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बहुत सारी अच्छी चीजें हमें दे रहा है. ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो गिविंग अस मेडिसिन, गुड्स, एवरीथिंग. देन everyone comes to tree 1. यहाँ पर ट्री 1 के पास आना सबको अच्छा लगता है क्योंकि ये एकदम साफ सुथरा है. यहाँ पर बच्चे भी खेलना पसंद करेंगे, बड़े लोग भी इसके नीचे बैठना पसंद करेंगे. ओके, बट वी आर बर्निंग वुड एंड टायर्स अराउंड एंड थ्रोइंग गार्बेज मीन्स कचरा नियर ट्री 2. ट्री 2 के आसपास देखोगे, उसके ऊपर देखोगे तो बहुत सारा गंदी मतलब कि कचरा भी डाल के रखा है, टायर है, कहीं पर कोई जला रहा है आग. तो इसके कारण ट्री 2 के नीचे कोई ना बैठना चाहेगा. इवन द बर्ड्स, दे आर ऑल्सो गोइंग अवे फ्रॉम दैट ट्री. बर्ड्स भी यहाँ से भाग रहे हैं. ठीक है. देन द पिक्चर 1 शोज दैट द बर्ड्स आर हैप्पी इन देयर नेस्ट ऑन द ट्री. पिक्चर 1 में बर्ड्स यहाँ पर खुशी से रहते होंगे. ठीक है. वाइल इन पिक्चर 2, द बर्ड्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द ट्री ड्यू टू पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस. ह्यूमंस मतलब हम लोगों ने इसको गंदा करके रखा है ट्री को, इसीलिए सब लोग वहाँ से दूर भाग रहे हैं. बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एंड दैट ट्री इज ऑल्सो अनहैप्पी. तो देखा हमने, हम ट्रीज को कितना नुकसान पहुँचाते हैं, जबकि सामने ट्रीज हमें बहुत कुछ देते हैं. यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स दे आर गिविंग अस. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. आगे, ओके, व्हाट द ट्रीज गिव अस. ट्रीज हमें क्या क्या देते हैं और व्हाट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज, वो सब यहाँ पर मैंने एक पिक्चर में दिखाया है. यू कैन सी दैट ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देन फ्रेश एयर, और यू कैन सी ऑक्सीजन टू ब्रीथ. देन ये प्रोवाइड शेल्टर टू बर्ड्स. शेल्टर मतलब कि उनका रहने की जगह देता है उनको, बर्ड्स को और एनिमल्स को भी देते हैं, जैसे बंदर है. देन इट गिव्स फूड टू एनिमल्स. So all these things we are getting from these trees. So we have to protect them. We have to save trees because they are our best friends. Now here the same question is there. Question 1. Look at picture 1 and write 3 sentences on what the trees give us. जो हमने आगे देखा वही यहाँ पर लिखा हुआ है. I will read out. Number 1. Tree gives us fresh air and oxygen. Number 2, they gives us flowers, fruit, rubber and wood. Number 3,
they give us medicines. 4. Trees provide shelter to many birds, animals and insects. Number 5. Trees help to bring the rain. पेड़ बारिश को लाने में भी बहुत ही मदद करते हैं. So these are all uses of trees. That is why we need to save trees. Now, question number 2. Look at picture 2 and write 3 sentences on how we harm the trees. वहाँ पर 2 पिक्चर देखे थे ना, तो पिक्चर 2 में दिखाया गया था कि पेड़ों को हम कैसे नुकसान पहुँचाते हैं, उनके बारे में लिखना है. नंबर 1, we harm trees by cutting them for wood to make furniture and to burn. हम लोग पेड़ों को काटते हैं, क्यों? लकड़ी के लिए, जिससे फर्नीचर बनता है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और उसे जला के उसको यूज़ किया जाता है. नंबर 2, वी हार्म ट्रीज बाय पुटिंग फॉरेस्ट ऑन फायर. कहीं कहीं पर जंगल में आग लगा दी जाती है ताकि वहाँ पर कुछ और बनाया जा सके. नंबर 3, वी हार्म देम बाय पॉल्यूटिंग द प्लेस. वहाँ पर लोग पॉल्यूशन करते हैं, कुछ जला देते हैं, उससे भी पेड़ों को नुकसान होता है. देन नंबर 4, समटाइम्स वी कट ट्रीज टू मेक हाउस और इंडस्ट्रीज. कभी कभी हम लोग कोई घर बनाने के लिए या कोई फैक्ट्री डालने के लिए भी पेड़ों को काट देते हैं. हमें ये सब नहीं करना चाहिए. देन गिवन बिलो आर पार्ट्स ऑफ ट्री, डिस्क्राइब देम इन द गिवन स्पेस. तो यहाँ पर पेड़ों के अलग अलग पार्ट्स के नाम हैं, उनका यूज और उनका वर्क क्या है वो हमें बताना है. द फर्स्ट वन इज स्टेम. ओके, इट हेल्प्स द ट्री टू स्टैंड स्ट्रेट. ये ट्रंक ऑफ द ट्री है, जो पेड़ का मेन पार्ट है वो स्टेम है. इट हेल्प्स द ट्री टू स्टैंड स्ट्रेट एंड ऑल्सो हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस बिटवीन रूट एंड लीव्स. देन बार्क, यानी कि पेड़ की खाल जो होती है ऊपर की वो. इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ ट्रीज ट्रंक एंड ब्रांचेस लाइक अ प्रोटेक्टिव स्किन. तो वो एक, जैसे हमारे बॉडी के ऊपर स्किन होता है वैसे ही इनके ऊपर बार्क होता है, वो ट्री को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, स्किन के जैसे. देन लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रिपेयर फूड. दे आर ग्रीन इन कलर एंड दे मेक फूड फॉर द प्लांट. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे क्रिएट और दे प्रिपेयर फूड फॉर द ट्री. Then branch or branches, you can say, these are parts emerging from the main stem on which the leaves grow. ये बहुत बड़ा पार्ट है और उनके ऊपर ही लीव्स लगते हैं. Then twigs are very thin and they are weak branches. Then root is also very important. Roots are like thread and long part under the earth which hold the plant strongly in the soil and provide strong support to the tree. रूट के बहुत सारे काम हैं, वो पेड़ को जमीन के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड रखता है ताकि पेड़ गिर ना जाए, और जमीन से पानी और बाकी सब न्यूट्रिशंस वो खींच लेता है, उससे पेड़ का ग्रोथ जल्दी होता है. तो ये अलग अलग पार्ट है. ऊपर से बाद में है सूट. The part of the plant above the soil is called the shoot. जो ऊपर का पार्ट होता है प्लांट का वो क्या बोलते हैं उसको? सूट. नेक्स्ट, गिव ऑपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. नीचे जो वर्ड्स दिए हैं उनका ऑपोजिट आपको बताना है. द फर्स्ट वन इज डाउनवर्ड, ऑपोजिट इज अपवर्ड. देन स्लोली, फास्ट. लिटल, बिग. स्लेंडर, fat. Mighty, weak. Day, night. Out, in. Appear, disappear. Far, near. Wide, narrow. So these are all opposite words. Children, you have to write down all the question answer and all these exercise we have discussed in your classwork copy. Now at last your homework. ये होमवर्क भी आपको अपने कॉपी में लिखना है, पूरा क्लास वर्क होमवर्क दोनों कॉपी के अंदर करना है, ठीक है. देन योर होमवर्क इज यू हैव टू फाइंड आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम फॉर द गिवन वर्ड्स, एंड द वर्ड्स आर सेड,
जैसे सेड है, उसका राइमिंग वर्ड क्या होगा, डे, उसका राइमिंग वर्ड। और ये सभी राइमिंग वर्ड्स पोएम में आप लोग को दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, योर पोएम इज कंप्लीट हियर। नाउ यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग। ओके, बाय।